السلام علیکم، آداب معزز ناظرین، میں آپ کا میزبان فرید احمد نائک حاضر خدمت ہوں۔ ایک بار آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل دی چناب ٹائمز میں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سبھی بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ معزز ناظرین، دعا رہے گی کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں، خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو خوشی اور استقامت عطا فرمائے۔ معزز ساتھیوں، اس وقت موجود ہوں ضلع ڈوڈا کی تحصیل محلہ کے شرشو گاؤں میں، اور ٹھیک بیٹھا ہوں، آپ ٹھیک میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، دارالحکمہ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ، ایک تعلیمی ادارہ ہے۔ اور یہاں پر اس وقت جو ہے آنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ لیکن میں بتا دوں یہ جو ہے یہاں پر بنانے کا مقصد کیا ہے، اور یہاا پر میں بتا دوں کچھ ہی عرصہ ہوا اسے بنے ہوئے، اور پہلا بیچ جو ہے زیر تعلیم ہے یہاں پر، بچے جو ہے پہلی بار یہاں پر ایڈمیشن ہوئی ہے، اور نیا یہ ادارہ ہے۔ اور آخرکار اس کے یہاں پر بنانے کا کیا مقصد ہے، کیا غرض و غایت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر باقی مدارس سے کیا نیا ہے، کیونکہ مدارس آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک لفظ جو لکھا ہے، ایک چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے، ریسرچ۔ یہ ریسرچ کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ان سے جانیں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نور الحسن حفیظی صاحب۔ آپ ہمیں ان ڈیٹیل پورے طریقے سے بتائیں گے کہ یہاں پر اس قسم کے مدارس، اس قسم کا ادارہ کھولنے کی کیا ضرورت پڑی، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں باقی مدارس سے کیا نیا ہے، کتنے طالب علم زیر تعلیم ہے، اور باقی تمام چیزیں ہم انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تو سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل دی چناب ٹائمز میں۔ شکریہ محترم، سوالات تو آپ نے سن لیے، لیکن پھر سے دہرانے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پر ایک پسماندہ علاقہ ہے، ظاہر سی بات ہے، اور بہت سارے مدارس یہاں پر ہیں بھی، تو میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک نیا نام، نئی شروعات، اور نئے طریقے سے آپ نے جس طریقے سے کہا یہاں پر تعلیم دی جائے گی بچوں کو، تو کیا مقصد ہے اس کے پیچھے، اور کیا غرض و غایت ہے، یہ تمام چیزیں آپ تفصیلاً ہمارے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ چونکہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ انسان کی پہچان تعلیم سے ہے، اور تعلیم ہی انسانی معاشرے کو ایک عروج اور بلندی عطا کرتی ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، سب مذاہب میں تعلیم و تربیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور چونکہ الحمدللہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اور قرآن نے بھی جاں بجا علم کی اہمیت کو واضح طور بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے سارے انبیاء کو، جتنے بھی اللہ کے میسنجرز، انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، سارے پیغمبروں کو علم دے کر بھیجا، اور ہمارے نبی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، انہیں بھی اللہ نے معلم بنا کر بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعثت معلما، میں دنیا میں ایک معلم یعنی ٹیچر بن کر آیا ہوں، میں دنیا والوں کو سکھانے کے لیے آیا ہوں، اور اپنی امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ الحکمت دالۃ المؤمن، کہ حکمت جو ہے، علم، حکمت، وزڈم، یہ ایک مومن کی گمشدہ پونجی ہے، فحیث وجدہا احق بہا، جہاں بھی وہ علم اور نالج کو دیکھے گا تو مومن حقدار ہے کہ وہ اسے حاصل کرے۔ یعنی جہاں پر بھی ہمیں علم ملے، نالج ملے، اور جہاں پر بھی ہم کسی انٹلیکچوئل آدمی کو دیکھیں تو کہا گیا ہے کہ اس سے کچھ سیکھو، اور
اس کا جو وزڈم ہے، اس کی جو حکمت ہے، اسے حاصل کرو۔ چنانچہ علم کی اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں نے اپنے علاقے پہ ایک نظر دوڑائی، الحمدللہ ہزاروں مدارس پوری دنیا میں، ہمارے ملک ہندوستان میں، ہماری اس جموں کشمیر میں سینکڑوں مدارس کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم کسی بھی مدرسے کے کام کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، ان کی اہمیت کو ہم کم نہیں کر سکتے۔ سارے مدارس اپنے اپنے طور پہ، اپنے اپنے کیپیسٹی کے مطابق، اپنے اپنے لحاظ سے اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن بہت عرصے سے میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں پر بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، عصری تعلیم ہے، وہ بھی دی جائے، اور تعلیم کے ساتھ بچوں کو تربیت دی جائے۔ بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے مختلف پروگرام کیے جائیں، بچوں کی جسمانی نشو و نما کے لیے کھیل کود کے مواقع میسر رکھے جائیں، اور تعلیم کے ساتھ بچوں کو تربیت دی جائے۔ کیونکہ دیکھیے محترم فرید صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پوری دنیا ہے، دنیا کے حالات بہت حد تک گرے ہوئے ہیں، اخلاقی پسماندگی ہے۔ جو ایک مورل ایجوکیشن ہوتی تھی جو ہمارے سکولوں میں پہلے دی جاتی تھی، تو مورلی طور پر اگر اخلاقی طور پر ہم دیکھیں تو ہمارا معاشرہ اس وقت یعنی سیلفش لوگ ہو گئے ہیں ابھی، جس کو کہتے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہے، خود غرض، ہر کسی انسان کو اپنی فکر ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ایسی تربیت دی جائے کہ ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم دنیا میں صرف اپنے لیے نہیں آئے ہیں، اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں، بھائی جینا ہے تو اوروں کے لیے جیو۔ ایسی تعلیم، ایسی تربیت دی جائے کہ جس میں بچے کو پتہ ہو کہ میں یہی بچے جو آج ہمارے پاس ہیں، 70 بچے یہاں ابھی تعلیم پڑھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ ذہن لے کر یہاں سے جائیں، یہ ایک خیال لے کر جائیں یہاں سے، یہ ایک ویژن لے کر جائیں، ایک سوچ لے کر جائیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم صرف اپنے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم نے دنیا میں سے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے کچھ کر کے جانا ہے۔ کیونکہ جب انسان کا یہ ویژن ہوگا، جب انسان کی یہ سوچ ہوگی کہ مجھے دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے، قربانی کا جذبہ ہو، تو جس کی یہ سوچ ہو وہی اپنے پیرنٹس کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے نیبرز جو ہمسائے ہیں ان کو، اور اپنی ریاست کو، اپنے ملک کو وہی آدمی فائدہ پہنچا سکتا ہے جس آدمی کی یہ سوچ ہو کہ مجھے اوروں کے لیے جینا ہے۔ بالکل محترم، میں نے جب بھی آپ کو سنا ہے آپ زیادہ تر یکسانیت کی باتیں کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کرنی بھی چاہیے، اور آج کل کے دور کی بات کی جائے جہاں آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نفسی نفسی ہے، ہر ایک شخص جو ہے مفاد پرست ہو چکا ہے، معاشرے کی طرف کسی کو دھیان نہیں، حالانکہ جو فرائض منصبی ایک انسان کے ہیں وہ شاید انسان ان سے بھاگ رہا ہے، انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ نبھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہاں کمی ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیونکہ ہمارا فرض تھا ہمارے ماحول کو دیکھنا، ہمارے ہمسائے کو دیکھنا، لیکن ہمسائے تک کو نہیں دیکھتے، ماحول تو ایک دور کی بات ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ماحول میں کس قدر تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تھوڑا سا ٹاپک ہٹ کے ہے، لیکن میں چاہوں گا کیونکہ آپ کے سننے والے بہت ہیں، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے معاشرے کو اور بالخصوص نوجوانوں کو؟ کیونکہ بہت ساری بیماریاں ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں، تو تھوڑا سا تفصیلاً ایک میسیج بھی دے دیں اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا اس معاملے میں وضاحت فرمائیں۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور ہر انسان یہ کہتا ہوا ملتا ہے ہمیں، آپ ہر دوسرے انسان کو یہ کہتا ہوا پائیں گے کہ ہر انسان جو ہے جی وہ اپنا سوچتا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مادہ پرست ہو گئے ہیں، ہم جو میٹیریل ہے، ہم میٹیریلسٹ ہو گئے ہیں، نفسی غلام۔ ہاں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دولت کے پجاری جسے کہتے ہیں ہم ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ ساری دنیا کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، لوگ مذہب سے دور ہو گئے ہیں۔ دیکھیے،
मज़हब जो है, हम मुसलमान हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर मानते हैं। ईसाई जो लोग हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं। जो यहूदी लोग हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। इसी तरह जो बुद्धिस्ट हैं वो महात्मा बुद्ध को मानते हैं, गौतम बुद्ध को। इसी तरह जो है जैन वाले हैं वो महावीर को मानते हैं। हमारे जो मेजॉरिटी जो हिंदुस्तान में है हिंदू लोग रहते हैं वो कृष्ण को मानते हैं, रामचंद्र जी को मानते हैं। लेकिन जो सारे मज़ाहिब के जो हमारे टॉप जो लीडरशिप जिसे कहेंगे, या जो हमारे महात्मा हैं, चाहे अंबिया हों, चाहे सहाबा हों, अवलिया हों, महात्मा हों, बड़े बड़े साधु संत हों, तो उन लोगों की ज़िंदगियों में शांति थी। उस शांति, वो पीसफुल उनकी ज़िंदगी थी। उसकी वजह ये थी कि वो इस दुनिया को आर्जी समझते थे। वो समझते ये दुनिया है, तो इस दुनिया का सामान अगर हम बहुत सारे सालों के लिए जमा करें तो एक दिन तो हमें मर कर चले जाना है, तो ये जमा पूंजी किस लिए रखनी है। चनाचा अल्लामा इकबाल ने कहा है कि आगाह है अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। हमें पता नहीं कल हमारा हाल क्या होगा, लेकिन हमने 100 साल के लिए दौलत जमा कर रखते हैं। तो यही वजह है कि हम मज़हब से दूर हो गए और शांति भंग हो गई। उसकी वजह यह है कि हमने इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया है कि इस दुनिया से जाना भी है एक दिन, और वो जो आने वाला वक्त है, जो आखिरत है, जो आफ्टर दिस वर्ल्ड एक और दुनिया है, उसके लिए तैयारी क्या है वो हम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे इकबाल का एक शेर याद आया जो प्योर हिंदी का शेर है। अल्लामा इकबाल ने हिंदी के भी कुछ शेर कहे। वो कहते हैं, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। कहते हैं कि शक्ति, ताकत, जो इंसान एक अल्लाह को मानता है उससे बड़ा कोई ताकतवर नहीं होता। शांति, उसे फिर शांति भी आती है, मन की शांति आती है उसे सुकून कल्ब जिसे कहते हैं, दिल का इत्मीनान आ जाता है। कहते भक्त कहते हैं मानने वाले को, इबादत करने वाले, जिसे हम हिंदी में तो भक्त कहते हैं, अरबी में हम कहते हैं आरिफ, जाहिद, इबादत गुजार, आबिद। तो कहते हैं शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत। उनका गीत क्या होता है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद कहते हैं धरती के बासियों की, जो धरती के ज़मीन के रहने वाले लोग हैं, जो इस ज़मीन पे, इस प्लैनेट पे रहते हैं लोग, हाँ, तो मुक्ति, उनकी मुक्ति किस में, प्रीत में है, प्यार में है, मोहब्बत में। तो वो प्यार कम हो गया है, प्यार की कमी है, मोहब्बत की कमी है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उनसे पूछा कि कौन लोग अच्छे हैं, तो फरमाया खैरुन्नास मन यनफउन्नास, वो लोग दुनिया में अच्छे हैं जो और लोगों के काम आए हैं। जो अब हमें सोचना है एज एक ह्यूमन बीइंग, एज एक इंसान, हमने ये सोचना है कि मैं बतौर इंसान हूँ तो मुझे और इंसानों को फ़ायदा पहुँचाना है। अब हर कोई, अगर मेरे नाज़रीन हैं, सुनने वाले हैं और लोग हैं, हर किसी को सोचना है कि मेरी वजह से और लोगों को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। अगर ये सोचें हम कि हम दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएंगे तो इस दुनिया में अमन, शांति, पीस आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने बयान किया, लेकिन मुद्दे से थोड़ा सा हट गए थे हम। मैं चाहूँगा वापस मुद्दे पे आएँ, और जिस तरीके से सितारे की बात कर रहा था मैं, और मैं कह रहा था किस तरीके की यहाँ पर तालीम दी जाएगी, और आपने कहा कि सबसे पहले हम अपने बच्चों में जो वो दबी हुई सोच है, माशरे के लिए जो ज़िम्मेदारी है, और साथ ही साथ जो दीनी तालीम है वो फ़राहम करेंगे। उसके बाद दुनियावी जो तालीम है वो भी बच्चों को दी जाएगी, और बाकी जो चीज़ें हमारी नशोनुमा के लिए ज़रूरी होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जिन्हें कहते हैं, वो भी यहाँ पर जो है बच्चों को खिलाया जाता है। तरह तरह के खेल यहाँ पर खिलाए जाते हैं। तो खैर, जिस तरीके की आपकी ये सोच है, और यहाँ पर ही क्यों आपको लगा कि इस जगह यहाँ पर जो है ये ऐसे किस्म के मदारिस खोलने की ज़रूरत है? असल में ये बड़ा दिलचस्प एक बात है कि आज से 2 साल पहले जब मैं श्रीनगर से घर आया तो हमारे दोस्त हैं मोहतरम बशीर अहमद गानाई साहब, तो उन्होंने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, दीनी तालीम आपने पढ़ी है,
तो श्रीनगर में कश्मीर में बहुत से लोग बोलने वाले हैं, बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाने आप वाले हैं। ज़्यादातर बाहर रहे हैं और हाँ। आपने अपनी ज़िंदगी का लगभग आधा वक्त जो है बाहर जी काटा। बिल्कुल 20-25 साल बाहर गुजारे। तो कहा कि हमारे अपने इलाके के बारे में आपसे पूछा जाएगा क़यामत के दिन बिल्कुल कि आपने जो अपना इलाका है, अपने लोग हैं, तो इनमें रहकर आपने कोई काम क्यों नहीं किया, बिल्कुल सोशल वेलफेयर का, एजुकेशन का, तालीम और रिसर्च जी, का। जी, जी। तो मैंने कहा कि अगर मैं घर आऊँ तो यहाँ क्या करेंगे, कहा एक अदारा बनाएंगे। मैंने कहा पहले ज़मीन होनी चाहिए, तो उन्होंने बरमला कहा कि हम ज़मीन दे देंगे। तो ये ज़मीन जो 1 कनाल से ज़्यादा ज़मीन उन्होंने दी है। फिर उनके वालिद साहब ने कहा कि हम ज़मीन दे देंगे। तो इसी वो वजह बनी, जब उन्होंने कहा ज़मीन हम देंगे तो बड़ा मसला था कि ग्राउंड होना चाहिए पहले इदारा बनाने के लिए। जब उन्होंने ज़मीन के लिए कह दिया कि हम दे देंगे, फिर हमारी ये ज़मीन हमें पसंद आ गई। दूसरी वजह यह है कि उनकी ज़मीनें दूसरी जगहों पर भी है, यहाँ चूँकि बस्ती दूर दूर है, बिल्कुल तो इदारा जो तालीमी इदारा हो ये तन्हाई ढूंढता है तन्हाई ढूंढता। कि बच्चों को तन्हाई। दूसरी वजह ये थी कि यहाँ ज़मीनें वसी हैं, खेलने के लिए बच्चों को कोई तंगी नहीं है, इसीलिए। और ये थोड़ा सेंटर है, देखिए इसके ऊपर इतने इलाके हैं बहुत सारे हैं। यहाँ से, तो इसलिए इससे एक मरकज़ी अहमियत हासिल है। ये सेंटर प्लेस है, यहाँ से डोडा ठाठरी दूसरे इलाकों से आने वालों को कहीं ना कहीं आसानी। सेंटर प्लेस ढूंढी गई और ताकि बिल्कुल। तमाम इलाकों के बच्चे यहाँ पर बच्चे जमा यहाँ हो आराम से सके। चलिए, बिलखुसूस यहाँ पर रिसर्च मैंने देखा, तो ये रिसर्च को थोड़ा सा आप डिफाइन कीजिए, रिसर्च किस चीज़ की है? रिसर्च जो है, देखिए रिसर्च असल में तहकीक जिसे हम है। कहते हैं, ये तहकीक। तो दुनिया में कोई भी काम तब तक अपना पूरा फ़ायदा नहीं देता जब तक न उस पर तहकीक की जाए, जाहिर से। जब तक न रिसर्च। देखिए हम अगर अखरोट खाएंगे उसमें बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन अगर रिसर्च करेंगे फिर वो कहेंगे कि अखरोट कब खाना है, किस वक्त खाने से ज़्यादा फ़ायदा देगा, और इसका जो अखरोट का जो ऑयल निकलेगा वो कितना फ़ायदा देगा। इस तरह दुनिया की हर चीज़ पे रिसर्च। तो इसी तरह इल्म जो है, एक है पढ़ना, दूसरा है उस पर रिसर्च करना। कुरान की आयत पे रिसर्च करना, एक एक आयत है तो एक आयत की इम्प्लीमेंटेशन कितनी जगहों पे होती है। इसी तरह कुरान के बाद अहादीस हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, तो उनका जो फरमान है उस पर मौजूदा ज़माने के मुताबिक जो साइंटिफिक दौर है इसके मुताबिक उस पर हम कैसे अमल कर सकते हैं। जो जदीद चैलेंज आ गए तो उनसे हमने कैसे उनके साथ हमने कैसे मुकाबला करना है, कैसे निभाना है उनके साथ। तो इसके बाद जो साइंस है उस पे हमने अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है साइंटिफिकली तौर। मतलब तमाम तरीके की जो है रिसर्च यानी तहकीक बच्चों को कराई जाएगी, समझाया जाएगा। आपकी इंतज़ामिया में से किसी शख्स से मुलाकात हुई तो मैंने सुना कि यहाँ पर बच्चों को जल्द ही डिफरेंट जो टेक्निकल कोर्सेज़ उन्होंने कहा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, तो वो भी सिखाए जाएंगे ताकि बच्चे जो है यहाँ से निकल कर मुख्तलिफ़ शोबों में आगे बढ़ें और उनका इंटरेस्ट देखा जाएगा किस फील्ड में वो ज़्यादा महारत रखते हैं, तो उसी फील्ड के कोर्सेज भी कराए जाएंगे। इसके बारे में क्या कहना है आपका, क्या ये हकीकत है? असल में यही जो इसके जो ये दारुल हिकमा इदारा है, जो इसका बाइलाज है, जो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, तो उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि बच्चों को, देखिए एक बच्चा तालीम पढ़ता है, हाफ़िज़ कुरान हो गया, अगर वो ग्रेजुएट हो गया, लेकिन उसके बाद अगर उसे कोई काम नहीं आएगा तो वो फिर ढूंढता है मैं क्या करूँ। ज़ाहिर सी। तो एक हाफिज़ भी है, आलिम भी है या ग्रेजुएट भी है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर कोई हाफिज़ बन गया उसके साथ अगर उसे किसी ऐसे इदारे में भेज दिया जाए, ITI में, जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो कोई कोर्स करेगा 2 साल के लिए, तो बच्चा हाफ़िज़ कुरान है, वो बच्चों को पढ़ा भी सकेगा अपनी बस्ती में, और वो रिज़्क़ हलाल कमा सकेगा अपने हाथों से मेहनत करके। अगर कोई प्लम्बर बनेगा, कोई जो आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ जहन में ज़रूर रखी है, क्योंकि आज के दौर में कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त बेरोज़गार हैं, और नौजवानों की बात बिलखुसूस की जाए तो आज मज़दूरी करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मेहनत कश लोग नहीं हैं क्योंकि आदत नहीं रही है, तो नौजवानों को पहले ही पढ़ाई की ओर लगाया जाता है और बाद में आज हालात ऐसे हैं कि नौकरी नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी सोच वही है। क्या? बिल्कुल, मेरी सोच यह है कि जब वो पढ़े तालीम, उसे कोई काम भी आना चाहिए
टेक्निकली, ताकि फिर वो अपने हाथों से काम करेगा। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, न्यू एज विजन, एक रिसाला निकलता था नई दिल्ली से, कि जापान में आप देखिए वहाँ PhD करके लोग नाई का काम करते हैं, यानी वो काम करने में नहीं शर्माते थे। और बड़े बड़े जो लोग गुजरे हैं, अब बिल गेट्स को देखिए, वो पहले मुर्गियाँ पालते थे, अंडे बेचते थे। इसी तरह जो बड़े लोग हैं, हमारे पैगम्बर साहब ने बकरियाँ पाली हैं, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजह शाह विलायत हैं, पूरी दुनिया के करोड़ों लोग उन पे फिदा हैं, मर मिटते हैं, लेकिन वो काम क्या करते थे? वो कुएं खोदते थे लोगों के और रिज़्क़ हलाल कमाते थे। हम चाहते हैं कि बच्चों की सोच तब्दील। मुझे लगता है जहाँ तक हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम ख़ुद को इंसान कहते हैं और कर्रा अर्ज़ पर अशरफुल मखलूक़ात का एक दर्जा इंसान को दिया गया है। तो आज इंसानों की कहीं ना कहीं सोच बदल गई है, क्योंकि हम बहुत सारे कामों को छोटा काम समझने लगे हैं। क्या लगता है आपको? वही सोच हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे नौजवान हैं, ये किसी काम को छोटा ना समझें, बल्कि भीख मांगने को गलत समझें, चोरी करने को गलत समझें, गलत कामों को गलत समझें और हलाल पैसा कमाएं, कोई भी काम करें उसको गलत ना समझे। तो जो तहकीक मेरी है, बड़े बड़े फ़ुक़हा हैं, इस्लामी दर्सों में एक किताब है कुदूरी जिसको कहते हैं, वो फ़िक़ा की, वो बहुत बड़े एक जूरिस्ट गुज़रे हैं इस्लामी फ़िक़ा के, इमाम कुदूरी। तो कुदूरी क्या है? कुदूरी किताब का नाम है जो बच्चों को पढ़ाई जाती है ग्रेजुएशन में, जो इस्लामी इदारे हैं ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है। बहुत बड़े स्कॉलर थे, लेकिन वो कुम्हार का काम करते थे। कुदूरी कहते हैं असली हांडी को, जो मिट्टी की हांडी बनाते हैं उसको कहते हैं किदरुन। तो वो हांडियाँ बनाते थे, यानी क्राल ओस, वो कुम्हार थे। कुम्हार होकर वो बड़े जूरिस्ट भी थे, इस्लामी अदालत के बड़े जज भी थे। लेकिन रिज़्क़ हलाल के लिए वो कुम्हार का काम करते थे। एक दूसरा मेरा जो प्रोग्राम है इस इदारे का, हमने कुछ अपने मुल्क के नेशनल लेवल के कुछ इदारे हैं, उनसे हमारे राब्ते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जब बच्चा 4 साल 5 साल पढ़े, अगर वो यहाँ से 12वीं जमात तक यहाँ पढ़ेगा, मुख्तलिफ यहाँ हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें हम बच्चों के एडमिशन रखते हैं। कोर्सेज़ यहाँ पर बिलखुसूस दीनी जो तालीम है उसकी बात की जाए, यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज़ कराए जाएंगे? यहाँ पर कुरान का नाजरा कराया जाता है, हिफ्ज़ कराया जाता है, उसके बाद इस्लामी फ़िक़ा पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है, उसके बाद कुरान की तफसीर पढ़ाई जाती है। हाँ, पहला बैच है। तो एडमिशन अभी ओपन है या फिर क्या लगता है? क्योंकि एकोमोडेशन की बात की जाए तो अभी ढांचा ज़ेर तामीर है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार? क्योंकि जब हमने ये इदारा शुरू किया था तो हमने पहले सोचा था कि हम 30-40 बच्चों को यहाँ लेंगे, उतना हमारे पास अच्छी एकोमोडेशन थी, 5 बड़े कमरे हैं। लेकिन लोगों की दिलचस्पी इतनी रही कि दूर दूर से लोग आए, तो हमें फिर 70 बच्चे अभी हमारे पास हैं। अभी भी हमारे पास बहुत सी दरख्वास्त हैं, 40 से ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास हैं जो बच्चों को यहाँ लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो इंशाल्लाह अनकरीब 15-20 दिन के अंदर अंदर हम इसकी दूसरी छत पे काम शुरू कर रहे हैं। तो जब वो काम मुकम्मल होगा फिर हम नई एडमिशन, फ़िलहाल अभी एडमिशन अभी बंद है, नई एडमिशन हम नहीं दे सकते, लेकिन आइंदा हम जब ये काम मुकम्मल होगा तो जब 2023 का जो बैच होगा उसके लिए हम फिर कुछ एडमिशन। चलिए, लोगों से क्या अपील रहेगी बिलखुसूस मुख्तसर से वक्त में, जो हमारे नाजरीन तक आपकी ये बात, आपका पैगाम पहुंचेगा, उनसे क्या अपील रहेगी? बाकी जो मसाइल हैं, मुद्दे हैं, मौजू हैं, उन पर भी इंशाल्लाह आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन बिलखुसूस इस इदारे की बात की जाए तो इसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा अवामुन्नास से? मैं लोगों से यही कहता हूँ, देखिए आम तौर पे इदारे वाले लोग कहते हैं कि यहाँ गरीब, नादार, यतीम बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए खैरात, सदक़ात वगैरह दो। लेकिन मैं इस सोच को बदलना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ लोगों, ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, तुम्हें जो दौलत अल्लाह ने दी है, तुम्हारा हक़ है कि तुम ऐसे इदारों की सरपरस्ती करो, ऐसे इदारों की मदद करो जो समाज को कुछ देना चाहते हैं। और मैं लोगों से कहता हूँ, हमारी सुनी हुई बातों पर ठीक है आप यकीन करेंगे, लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ खुद यहाँ आइए,
बिल्कुल। मैं दावत देता हूँ, जैसे आप आए अभी, मैं और लोगों से कहता हूँ जो मेरे नाजरीन सुन रहे हैं, हालांकि मैं लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ आपकी वसात से कि लोगों ने हमें दिल खोल कर हर वक्त मदद की है, ताउन किया है। जहाँ भी गए हैं लोग हमें हर जगह से बुलाते हैं कि आप आइए, हम आपके इदारे के साथ ताउन करेंगे, मदद करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ताउन किया आपने, किसी ने 500 दिया, 1000 दिया, 10,000 दिए, मैं कहता हूँ उससे बड़ा ताउन यह है कि आप यहाँ आइए, यहाँ आकर देखिए हमारी, यहाँ देखिए और हमारी खामियां जो आपको नज़र आए, हमें कहिए कि आपके पास ये खामी है, इसे दूर कीजिए, या ये कर रहे हैं आप, ये मत कीजिए, ये कीजिए, हमें मशवरे दीजिए, तरक्की हो, ताकि हम आपके मशवरों के मुताबिक आगे बढ़कर इस इदारे को कहीं उरूज पर ले जाएं, ताकि ये इदारा हमारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं बल्कि हमारे सिर्फ जम्मू सूबे का नहीं बल्कि रियासत का, हमारी इस यूटी का एक नुमाया इदारा बन जाए। उसके लिए आप हमारे हाथ से हाथ मिलाकर आइए ताकि हम मिलकर इस इदारे को उरूज पर ले जाएं और इस इदारे को आगे ले जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत। बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए, मैं आपका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप यहाँ आते रहेंगे। हम भी आपके हैं, ये इदारा भी आपका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा एक और चीज़ दिखाने की। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट स्कूल भी यहाँ पर साथ में है और आप बखूबी देख सकते हैं कि जो बच्चा यहाँ पर ज़ेर तालीम है, चाहे वो यहाँ पर दीनी एतबार से तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन दुनियावी एतबार से भी यहाँ पर तालीम बच्चों तक पहुँचाई जाती है। और स्कूल भी बिल्कुल साथ में आप देख सकते हैं। और बिल्डिंग थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा, बिल्डिंग ज़ेर तामीर है। अभी कैमरामैन से गुजारिश करूँगा बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमाया जाए। और अभी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें आपके ताउन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है किस कदर यहाँ पर रश हो चुका है, लेकिन बैठने के लिए कम जगह है, तो कहीं ना कहीं लोगों की ताउन की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने कहा कि तालीम बच्चों को देनी ज़रूरी है, लेकिन तालीम बच्चों तक ऐसी पहुँचनी चाहिए जो हमारे माशरे को मुस्बत सोच की तरफ ले जाए। और आज के दौर की बात की जाए तो हमारा माशरा मनफी सोच का मालिक हो गया है, मनफी सोच के जो इर्द गिर्द घूम रहा है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है इसी गर्ज से आया था कि आप तक ये इदारा पहुंचाया जाए, यहाँ की क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरीके से ये बच्चों को यहाँ पर तालीम देते हैं, क्या इनका मकसद है, वो आप तक पहुंचाया जाए। तो इसी के साथ इजाज़त भी चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़ा फिर किसी अहम मौजू को लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए द चिनाब टाइम। कैमरामैन GM गमगीन के साथ मैं फ़रीद अहमद नाइक, डोडा।